Okay, good. So, class, today we all are going to start our new chapter of your book, Democratic Politics 2, that is your political science book. So, today we all are going to start chapter number 2 of your book, and your chapter name is Federalism. We had a little bit understanding about the term federalism. We talk about federalism, or the you can say level of the government. Uh, in our last chapter, power sharing, we talk about it, right? So now let's start federalism. First of all, what do you mean by the term federalism? Before that, we will understand this uh, go through chapter number 1. Okay, we have seen the example of Belgium and Sri Lanka there. We saw there there were some changes made in the constitution of Belgium, and one of the change was to reduce the power of the central government. Reduce the power. They reduced the power of the central government. They divided their power between different levels of the government. Like they divided their power with state, and they also divided their power with community government. That is the regional government. Okay, so when this division happened, okay, that is known as division of power happened, or when we you can say when you divide the power between different authorities or different at different levels, that is known as federalism. Okay, so uh, now what is federalism? It is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Okay, it is the system of government. It is a type of, or you can say it is a certain system of the government where what happens, if we divide the power between different institutions or different organizations, or you can say constituent units of the country. For example, in India we have central government, we have state government, and we have local government. Now what we have done, or you can say what we observe in this situation, we observe like we divided the country's power like between different levels. ऐसा यहाँ पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में हमने पावर को डिवाइड कर दी है, और इसी डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, इसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलते हैं फेडरलिज्म. ओके, so two levels of government. Government for the entire country, that is usually responsible for a few subjects of common national interest. Usually a federation has two levels of government. Normally जो federation है, ये जो government को हमने divide कर दिया है central, state और local government को, normally two levels की होती है ये government, central level और स्टेट लेवल, और इस डिवीजन को हम फेडरेशन भी बोलते हैं. ठीक है, सो गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, गवर्नमेंट एक तो गवर्नमेंट एट एंटायर लेवल, गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को लुक आफ्टर करती है, right? And second one is government at the levels of provinces or states that look after much of the day-to-day administrating of their state. ठीक है, गवर्नमेंट एट द प्रोविंसेस मतलब एक पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर टेरिटरी का, जब टेरिटरी के लिए टेरिटरी के डिसीजंस लेने की जब आप में पावर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट. फॉर एग्जांपल राजस्थान है, राजस्थान स्टेट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि यहाँ के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि डे टू डे वर्क कैसे होंगे, क्या लॉज हम लेकर आए जिससे कि हमारा जो स्टेट है
वो डेवलप हो, etc etc. It is in the hand of, right now it is in the hand of the you can say कांग्रेस गवर्नमेंट. ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट देख रही है. तो गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल एंड द गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल. सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो नेशनल इंटरेस्ट को लेके जो है मोस्टली डिसीजंस लेती है, और जो गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल है वो एक पर्टिकुलर प्रोविंसेस और पर्टिकुलर स्टेट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके क्या करती है, डिसीजंस लेती है. राइट. सो basically in the federation these are the two levels of the government. So I repeat once again, what is federalism? Very important. कोई भी क्वेश्चन आता है फेडरलिज्म से रिलेटेड, यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन. चाहे वो आपसे फीचर्स पूछ रहे हैं, चाहे वो आपसे यू कैन से कि फंक्शंस पूछ रहे हैं, या फिर चाहे आपसे पूछ रहे हैं जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, कुछ भी पूछ रहे हो, ठीक है, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, राइट दिस डेफिनेशन. सो once again I am explaining you this definition. Federalism is a state of government in which system of government in which power is divided between a central authority, central power, central level, central government, or you can say union government, and various constituent units. Units means states और local level पे, ठीक है, local government हो गई. So it is a system of government in which the power is divided between the central authority and various constituent units of the country, and it is known as फेडरलिज्म. ठीक है, जब एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जब हम सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट्स के बीच में या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में पावर को डिवाइड कर देते हैं, दैट इज नोन एज federalism. And usually we see two levels of government in the federations. We see two levels of the government, first at the central level and second at the state level. सेंट्रल लेवल पे जितने भी सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो एंटायर कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट है उन सब्जेक्ट्स पे वर्क करती है. एंड जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, या फिर आप यू कैन से कि प्रोविंसेस लेवल पे जो गवर्नमेंट है, दे लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट. डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग पे वो फोकस करते हैं, वो ध्यान देते हैं. सो आई होप नाउ दिस टॉपिक, दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू गाइज. नाउ व्हाट इज फेडरलिज्म? ओके, व्हेन वी डिवाइड द पावर of government between different levels. Okay, now question arises, like what is the basic difference between the unitary system and the federal system? ठीक है, now what is this? Federations are basically the contrasted with unitary government. Why? Unitary system, unit, what is the meaning of unit? Unit means single, or you can say one. Unit means once, right? So unitary system, there is only one level of government, or the sub-units are subordinate to the central government. Only one level of government. एक ही लेवल में गवर्नमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री के लिए जो है एक ही गवर्नमेंट है, कोई उसके नीचे कोई गवर्नमेंट नहीं है. ठीक है, स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, खाली एक ही लेवल पे गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे, और वही सारे डिसीजंस लेती है. There is only one level of government, or the sub units are subordinate to the central government. और अगर in case sub units हैं भी तो वो सबऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, वो सेंट्रल लेवल के डिसीजंस पे ही वर्क करेंगी. उनके पास कोई पावर नहीं होती इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजंस लेने का. राइट. Now the federal system. Now what is federal system? There are two or more levels, or you can say level is like tiers. Tier is the synonym of level, right?
सो देयर आर 2 or more लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज्यादा लेवल में जब गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज फेडरल सिस्टम. सो बेसिक डिफरेंस समझ आया यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम का. यूनिटरी सिस्टम, यूनिट टर्म से पता चलता है, वन सिंगल, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. अगर इन केस सबऑर्डिनेट्स हैं भी या कोई सब यूनिट्स हैं भी, तो वो किसके अंडर वर्क करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं. ओके, नाउ फेडरल सिस्टम, 2 or more लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. 2 तो मिनिमम है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 लेवल्स भी हो सकते हैं, 4 लेवल्स भी हो सकते हैं. सो देयर आर 2 or more लेवल्स, और यू कैन से टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. 2 या 2 से ज्यादा लेवल के गवर्नमेंट होते हैं. दे हैव लाइक दे हैव द पावर, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करने का प्रेशर नहीं रहता, या फिर उनके पास वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपने डिसीजंस को लेके. ओके, so this is the basic difference between unitary and federal system. Now the second point is the central government can pass on orders to the provincial or local government. Yes, central level can pass on orders. Central level प्रोविंशियल्स को, लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, ऑर्डर दे देगी, यू हैव टू डू दिस वर्क. ओके, स्टेट को स्टेट इस पे क्रिटिक नहीं कर सकता या अपोज नहीं कर सकता, बिकॉज सेंट्रल लेवल जो है वो सबसे सुपीरियर लेवल है. ठीक है, और स्टेट को उनका कहना मानना ही पड़ेगा, सबऑर्डिनेट्स को उनका कहना मानना ही पड़ेगा. ठीक है, इन यूनिटरी सिस्टम दोज कंट्रीज जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जो है मेन डिसीजन मेकिंग powers या अथॉरिटी होती है. सो ऑल द लोकल गवर्नमेंट्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स have to take care of all the orders given by the central government. Okay, now while the federal government, what is this federal, in federal system the central government cannot order the state government to do something. सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ऑर्डर नहीं कर सकती है, यू हैव टू डू दिस वर्क और यू हैव टू. फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. ठीक है, ऑल द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज लाइक दे आर इंडिपेंडेंट, they can take decisions for their state independently. ठीक है, obviously some exceptions are always there, but basically अब लॉकडाउन के लिए बोल दीजिए. ठीक है, अब हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में जो लॉकडाउन का प्रोसीजर है या डिफरेंट आप देखते हो. ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ये पॉलिसीज क्यों लेकर आ रहे हो, या फिर आप लॉकडाउन क्यों कर रहे हो. ठीक है, ये कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकती है. यस, अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, ठीक है, ऑल ओवर कंट्री की जब बात होती है तो बात अलग है, बट कुछ एडमिनिस्ट्रेटिंग लेवल पे, ठीक है, कि लाइक कि आप कोई राजस्थान का कैंडिडेट है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट जॉब लगी है, राजस्थान पुलिस में ही लगी है. ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर नहीं कर सकती है कि नहीं, इस राजस्थान का कैंडिडेट है तो आप ये राजस्थान में नहीं रहेगा, ये हम जहाँ चाहेंगे ये वहां रहेगा. नो, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती कि आप इसका ट्रांसफर नहीं कर सकते या कुछ ऐसे, समथिंग लाइक दैट. सो इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट टू डू समथिंग. को ऑर्डर नहीं कर सकती है कि आपको स्टेट को या लोकल गवर्नमेंट को आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज the central government is supreme and the administrative divisions exercise only powers that the central government has delegated to them. Okay, the central government is supreme, सबसे superior है, सबसे पावरफुल है, सबसे अथॉरिटेटिव बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है, सब यूनिट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, उन्हें अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स के अकॉर्डिंग, उनके डिसीजंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड टू देम. इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, इंटरेस्ट लिखती है और यू कैन से असाइन करती है वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को, या फिर जो भी आप बोल सकते हो लोकल लेवल है, सबऑर्डिनेट लेवल है, उनको डेलीगेट कर सकती है. डेलीगेट करना मीन्स असाइन करना. they can assign work to the state government or local government in unitary system. Okay, but in federal system what happens, state government has power of its own for which it is not answerable to the central government. State government has like state government is an independent body, they has their own power. Okay, and they are not answerable to the state government ki why they did this, or why they came up with this type of policies, etc etc. Okay, so देखा आपने फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम का बेसिक डिफरेंस क्या है. तो एग्जांपल्स जो है यूनिटरी सिस्टम कौन कौन से कंट्रीज में, सम एग्जांपल्स आर लाइक China, Scotland, United Kingdom. These are like some of the examples of the unitary system of the government. And India, obviously, India हो गया आपका, France, India, France. These are some of the examples of the federal system. Belgium. Okay. So difference between unitary system and federal system. Clear to you guys? Unitary, one level of government. Federal system, two or more level of government. Yes, Nikita? Okay. Clear? This basic difference between the unitary and federal system. Clear to you guys? I hope it is clear to you guys. Now, our next topic of this chapter. Examples nahi likhe hai maine, but examples are China, Scotland are some of the examples of the unitary system of government, and India, Belgium, France are some of the examples of the federal system of the government. Federal system, okay? So this is the basic difference between the unitary system and the federal system. Now, our next topic is key features of federalism. Okay, now features, or you can say key principles or characteristics, what are the attributes. So what are the attributes or characteristics of federalism? क्या है federalism के features क्या है? First of all, there are two or more levels or tiers of government. Tiers से please confuse मत हो जाना, ठीक है? Wheel, गाड़ी में जो पहिया लगता है वो टायर मत समझ लेना, ठीक है? So there are two or more levels. Levels के लिए use हुआ है tires, ठीक है? There are two or more levels of government. दो या दो से ज्यादा level of government यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. दिस इज वन ऑफ द लाइक यू कैन से सिंपलेस्ट फीचर, ठीक है? दो या दो से ज्यादा लेवल्स में यहाँ पे क्या होती है, गवर्नमेंट होती है. सेकेंड वन इज different tiers of government govern the same citizens. Now just look and listen to this feature very carefully. थोड़ा सा confusing है ये. Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, and administration. Now, first of all, what is this jurisdiction? ठीक है, अगर मैं लेमेस्ट लैंग्वेज में बोलूं, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हिंदी में बोलती हूँ, तो इट मीन्स वर्क करने का दायरा. ठीक है, एक जो आप किस दायरे तक काम कर सकते हो, ठीक है, आपका दायरा कितना है, दैट इज jurisdiction. So jurisdiction, the area over which someone has legal authority. The area may be defined in terms of geographical boundaries or in terms of certain kinds of subjects. ऐसा area, ठीक है, the area over which someone has legal authority. एक ऐसा एरिया जहां पे किसी को कुछ वर्क करने की अथॉरिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है और एक स्कूल में क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यू कैन से ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे या कमिटीज बना लेते हैं
डांस कमेटी हो गया, म्यूजिक कमेटी हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स कमेटी हो गया। सो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज आर देयर, और हर एक कमेटी में क्या कर देते हैं हम, एक एक हेड बना देते हैं। जैसे डांस कमेटी का एक हेड बना दिया, या फिर यू कैन से कि इंचार्ज बना दिया, म्यूजिक कमेटी का बना दिया, आफ्टर दैट स्पोर्ट्स कमेटी का बना दिया, फिर कल्चरल और लिंग्विस्टिक बेसिस का एक कमेटी बना दिया, ठीक है। सबके एक एक पर्टिकुलर इंचार्ज बना दिया हमने, ठीक है। और जितने भी डिसीजंस डांस से रिलेटेड होंगे, वो जो पर्टिकुलर हेड है उसको उतनी ही अथॉरिटी है कि डांस से रिलेटेड वो जो भी है, या इतनी ही पावर है कि डांस से रिलेटेड ही वो डिसीजंस ले सके। ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिक में जाके क्या करे, म्यूजिक में जाके he put his nose under this that music committee and take decision. No, he has no power to take decisions for the music committee. तो बेसिकली जुरिस्डिक्शन क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे किसी को एक लीगल अथॉरिटी होती है, कोई पावर यूज करने की लीगल अथॉरिटी होती है। तो ये जो एरिया है ज्योग्राफिकल टर्म्स में भी हो सकता है, बाउंड्रीज में भी हो सकता है, और सब्जेक्ट्स में भी हो सकता है। देखो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में जैसे कैसे, अब राजस्थान स्टेट है, तब राजस्थान स्टेट की जितनी भी यहाँ पे ये जितना भी स्टेट का बाउंड्री है, यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट अब पंजाब में जाके पंजाब के डिसीजंस ले सकती है। नो, राजस्थान गवर्नमेंट को वो पावर नहीं है। उनको खाली राजस्थान के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तक जो डिसीजंस लेने हैं उतनी ही पावर है, वो उतनी ही पावर का यूज कर सकता है। उसका जो दायरा है काम करने का ओनली उतना एरिया ही है, ठीक है। देखो, और या फिर सर्टेन सब्जेक्ट्स कि आप इस जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पर्सन ए है, या फिर हम यहाँ से किसी का आलिशा का नाम लेते हैं, ठीक है। आलिशा जो है वो क्या करेगी, डांसिंग कमेटी के जितने भी डिसीजंस हैं वो अलीशा लेगी, ठीक है। आशीष क्या करेगा, जो भी स्पोर्ट्स कमेटी है, स्पोर्ट्स कमेटी के डिसीजंस लेगा। मिलिंद क्या करेगा, मिलिंद जो है लिंग्विस्टिक रिलेटेड जितने भी आपके डिसीजंस है वो मिलिंद लेगा, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, सर्टेन सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए डिफरेंट डिफरेंट पर्संस में। तो जुरिस्डिक्शन इज समथिंग, ऐसा एरिया जहाँ पे लीगली ऑथराइज्ड होता है, किसी को एक एरिया होता है, दायरा होता है जिसपे वो काम कर सकते हैं। ओके, सो नाउ डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। अब देखिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है। अब हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं राजस्थान का। ये राजस्थान है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एंड दिस इज इंडिया, ठीक है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ये राजस्थान है। अब राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट जो है आपकी राजस्थान की, ठीक है, उनको क्या डिसीजंस लेने का, सिटीजन्स यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पे। अब इन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, इन्हीं लोगों को गवर्न कर रही है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी क्या कर रही है, इन्हीं लोगों को गवर्न कर रही है, ठीक है। आई टुक द एग्जांपल ऑफ जस्ट इन राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान का जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कौन से सिटीजन्स को, आपको, मुझे, आपकी फैमिलीज को, जितने भी हमारे नेटिव्स हैं, जितने भी हमारे फोक्स हैं, या फिर जितने भी सिटीजन्स हैं राजस्थान के, उन सबको राजस्थान गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। बट एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें गवर्न कर रही है ना, कि सेंट्रल लेवल पे जो डिसीजंस होते हैं जो एक स्टेट में लगते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो सिमिलरली different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction. उनका खुद का एक दायरा होता है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे वर्क कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट को लेके वर्क कर रही है, कि लॉज बना रही है, ठीक है, लॉज, अलग अलग लॉज बना रही है। टैक्सेशन की पॉलिसीज है कि टैक्सेशन की जो लोकल गवर्नमेंट, ये जो राजस्थान की जो पॉपुलेशन है, वहां से जो सेंट्रल लेवल पे टैक्स, कौन सा टैक्स
सेंटर के पास जाएगा और कौन सा टैक्स जो है स्टेट के पास जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टैक्स डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज के पास जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से वर्क में कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्क करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। फॉर एग्जांपल राजस्थान में जो डिफेंस होएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लुक आफ्टर करती है। वही जो यू कैन से कि जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया या फिर पुलिस ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, वो कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, कौन कहाँ पे जाएगा, ये कौन एडमिनिस्टर करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करते हैं। तो सिटीजन सेम होते हैं गवर्न, ठीक है, बट उनको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट जुरिस्डिक्शन पे उनको क्या किया जाता है, उनका जो जुरिस्डिक्शन है हर एक टायर का वो डिफरेंट होता है, वो स्पेसिफिक मैटर्स पे वर्क करते हैं। Okay, now our third point is the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. The existence and authority, yes, the fundament, the jurisdiction of the respective levels of tiers of government are specified in the constitution. कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स होगी, किस लेवल पे। बस ये लास्ट है बेटा, उसके बाद हम बाकी के 4 जो पॉइंट्स है कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो जुरिस्डिक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से किस जुरिस्डिक्शन पे काम करेगी या क्या क्या अथॉरिटी है उनके पास, या फिर आप यू कैन से कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या अथॉरिटी है, किस सब्जेक्ट्स पे वो वर्क करेगी। ये सारा का सारा जो जुरिस्डिक्शन है, जो दायरा है काम करने का, ठीक है, कि कौन से एरिया में कौन सा पर्सन काम करेगा, ये सब का सब आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी दी गई है कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट जो है ये काम करेगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सेंट्रल ये काम करेगी, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट देयर सब्जेक्ट्स लेटर ऑन इन दिस चैप्टर। एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी ये भी मेंशन किया गया है। लोकल गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स पे वर्क करेगी वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। ओके, सो दीज are the 3 features of the federalism which we have discussed today. Now rest 4 features we will discuss in our next class. So class, go through the topic, go through the chapter. We have done like almost 1.5 page. Okay, so go through the content, go through the topic. If you face any problem, you may ask me in my next class. Okay, this is all about today. Thank you everybody for joining the class. Yes, now if you guys have any doubt, you may ask me कि आज के टॉपिक में अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कि वो see what is federalism or something like that. Yes, Suryansh. Good morning, ma'am. Good morning. And United States follow unitary system or federal system? Unitary system of government. Okay, ma'am. Okay, you can Google it. You can देख सकते हो, ठीक है। Yes. Anybody else? Anybody else? Yes, Vidhi Beth, please unmute your device. Ma'am, federalism works only in big countries? Not necessary. Like Belgium